Welcome dear students. This is Professor Kavita Brahmankar and today we are going to see new topic that is 2D shearing transformation. The learning outcomes are, after watching this video, you will be able to define transformation, define shearing transformation and solve numericals based on shearing transformation. Course outcome that will get satisfied is develop program for 2D and 3D transformation, and program outcomes will get satisfied are PO1, that is improvement in your basic knowledge, PO2 improvement in computer engineering knowledge, PO7 ethics will get satisfied, PO8 you will be able to work individually or in a team work, PO9 that is communication, you will be able to communicate orally or written, and PO10 that is lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should have basic knowledge of coordinate system and you should have basic knowledge of transformation techniques, that is translation, rotation, scaling and reflection. As we have seen in the last lecture, what is transformation? So, transformation is a process of modifying and repositioning the existing graphics. जो भी existing graphics है हमारे पास available, उसमें कुछ modification करना या उसको स्क्रीन पे रीपोजिशन करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको पोजीशन करना, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. एंड 2D transformation occurs only in a 2D plane. Now transformations will be helpful when we have to change the position of the object, change the size, orientation and shape of the object. In these conditions we will need transformations. So now let us see what is shearing in computer graphics. So 2D shearing is an ideal technique to change the shape of an existing object in a two-dimensional plane. Shearing means what? Shearing means just changing the shape of existing object. जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज करना, that is called shearing. Then in a two-dimensional plane, the object size can be changed along x direction as well as along y direction. Means ऑब्जेक्ट का साइज हमको चेंज करना है, लेकिन वो साइज चेंज करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो हम शेप चेंज कर सकते हैं along x direction and along y direction. So we can say there are two types of shearing or two versions of shearing. That is shearing in x-axis and shearing in y-axis. So shearing in x direction or shearing in y direction. So now let us see. Consider a point object O has to be sheared in a 2D plane. एक ऑब्जेक्ट O है हमारे 2D प्लेन पे, उसको हमको शेयरिंग परफॉर्म करना है उसके ऊपर. सो लेट अस से इनिशियल कोऑर्डिनेट्स x old and y old and शेयरिंग पैरामीटर टुवर्ड्स x डायरेक्शन. अभी अगर हमको x डायरेक्शन में शेयरिंग करना है, सो वी विल टेक पैरामीटर SHX. SH stands for shearing, and if we want to shear towards y direction, then it will SHY. So shearing in y direction. So after shearing, new coordinates of the object are x new and y new. So original coordinates are x old and y old. Two shearing parameters SHX and SHY, and new coordinates x new and y new. Then now if approximately we will take an example. So this is an original object, and if we perform shear in x direction, तो हमारे ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो इस तरह से चेंज होने वाला है. एंड
सेम ऑब्जेक्ट इफ यू परफॉर्म शेयर इन y डायरेक्शन, देन हमारे ऑब्जेक्ट का शेप इस तरह से चेंज होने वाला है. एंड इफ वी परफॉर्म शेयरिंग इन बोथ x एंड y डायरेक्शन, सो ऑब्जेक्ट विल अपीयर लाइक दिस. इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होने वाला है. सो यू कैन सी द डिफरेंस, हाउ it will look like after x shear, how it will look like after y shear, and how it will be after both x and y shear. So this is the example. Now let us see the equations or matrix for the shearing. So first of all we will see matrix for shearing, that is matrix for x shearing. So x nu and y nu, this is our resultant matrix, equals to, नाउ दिस इज ओरिजिनल शेयरिंग मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स हमको लिखना है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 करना है, एंड दैट विल बी 2D प्लेन पे है हम, इसलिए हम 2D मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार करने वाले हैं. सो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स पैरामीटर, मीन्स शेयरिंग अबाउट एक्स एक्सिस, एंड शेयरिंग अबाउट वाई एक्सिस विल बी 0. So this is our sharing matrix, and it is multiplied by original xy matrix, so multiplied by x old and y old. Now if we have to write the equation for x shear, then x new will be x new equal to x old plus shx into y old, and y new equals to y old, बिकॉज यहाँ पे एक y पैरामीटर जो हमने यहाँ पे 0 लिया है, इसलिए जो हमारा y न्यू कोऑर्डिनेट है दैट विल बी सेम एज y ओल्ड. सो अगर हम x शेयरिंग परफॉर्म करते हैं तो y के वैल्यूज एज इट इज रहते हैं, लेकिन x के वैल्यू में चेंज होती है. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर x शेयर परफॉर्म करेंगे तो हमारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होने वाली है आफ्टर शेयरिंग, बट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम प्रिजर्व करने वाले हैं, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एज इट इज रहने वाली है. सो हमेशा हमको ये रिमाइंड करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा कि x शेयरिंग है तो x कोऑर्डिनेट में चेंजेस होंगे, बट y कोऑर्डिनेट विल बी एज इट इज. देन शेयरिंग इन y एक्सिस. तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि अगर y एक्सिस पे शेयरिंग करना है तो y कोऑर्डिनेट्स चेंज होने वाले हैं फाइनली, बट x कोऑर्डिनेट हम प्रिजर्व करने वाले हैं. सो अभी हम y शेयरिंग के लिए इक्वेशंस बनाएंगे. सो x न्यू एंड y न्यू, दिस इज आवर रिजल्टेंट शेयरिंग मैट्रिक्स, एंड वी विल टेक 2D शेयरिंग मैट्रिक्स हियर ऑन y एक्सिस. सो दिस इज आवर shx, मींस दिस इज आवर x पैरामीटर. सो अभी x पैरामीटर हम 0 कर देंगे बिकॉज इट इज शेयरिंग इन y एक्सिस, एंड यहाँ पे हम शेयर पैरामीटर लिखेंगे एंड डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे. सो इन इक्वेशन फॉर्म इस तरह से लिखेंगे x न्यू इक्वल टू x ओल्ड, क्योंकि हम y के ऊपर शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए x न्यू एंड y ओल्ड ये दोनों सेम रहने वाले हैं. बट अभी y पैरामीटर हमारा y कोऑर्डिनेट हमारे चेंज होने वाले हैं. सो y new equal to y old plus shy into x old. So this is equation. So first of all we have to create the matrix, and after that we have to write down the equations. Now let us see one problem on 2D shearing. So problem is, given a triangle with points 1 1 0 0 and 1 0. So हम triangle फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे. सो दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन. सो a की वैल्यू है 1 1. सो सपोज दिस इज आवर 0 0 पॉइंट, एंड दिस इज 1 पॉइंट इन x डायरेक्शन एंड 1 पॉइंट इन y डायरेक्शन. सो 1 1. सो x डायरेक्शन में 1 एंड y डायरेक्शन में 1. सो दिस इज आवर a पॉइंट. b इज 0 0, मीन्स यहाँ पे आएगा वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, एंड c इज 1 0. सो x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 0. सो दिस इज आवर c कोऑर्डिनेट. तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया. नाउ अप्लाई शेयर पैरामीटर 2 ऑन x एक्सिस. इसका मतलब x एक्सिस की जो शेयर पैरामीटर की वैल्यू है दैट इज 2, मींस
SHX equal to 2 and 2 on y-axis means SHY equals to 2 and find out the new coordinates. अब हमारे पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है ABC, then those are हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स. देन शेयरिंग पैरामीटर SHX equals to 2 हमें पता है. देन शेयरिंग पैरामीटर SHY equals to 2 ये हमें पता है. नाउ वी हैव टू फाइंड X new and Y new. So we will solve for one by one coordinate. So now let us take coordinate A. So for coordinate A 1 1. New coordinates will be X new and Y new. So applying the sharing equations. अभी हमको X कोऑर्डिनेट पे शेयरिंग करना है, इसलिए X कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होने वाली है एंड Y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहने वाला है. तो यहाँ पे Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, इसलिए Y new and Y old equals to 1. Then X new equal to X old प्लस ये SHX into Y old. ये इक्वेशन ऑलरेडी हमको पता है. सो X old is 1 प्लस SHX is 2 into 1. सो इनका कैलकुलेशन करके हमको वैल्यू मिली है 3. सो न्यू कोऑर्डिनेट इज 3 and 1, A का न्यू कोऑर्डिनेट. देन उसी तरीके से हम B के न्यू कोऑर्डिनेट बनाएंगे. सो अभी एक ध्यान रखना है कि B इक्वल टू 0 0 है और 0 0 है, तो अगर हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट 0 आने वाला है. सो इट विल बी 0 0. देन फॉर C अगेन हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे. SH की पैरामीटर है 2, X ओल्ड है यहाँ पे 1 एंड Y की वैल्यू है 0, इसलिए ये पूरा 0 बनेगा एंड आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट 1. तो इसी तरीके से हमने C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं 1 0. सो दिस इज द न्यू वैल्यूज फॉर A, B एंड C. उसी तरीके से हम शेयरिंग ऑन Y एक्सिस भी निकालेंगे. तो अगर हम शेयरिंग ऑन X एक्सिस देखते हैं और उनको यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखने वाला है. तो सेम हम अगर Y शेयरिंग परफॉर्म करते हैं एंड इक्वेशन लिख के वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, सो फाइनली हमको इस तरीके से वैल्यूज मिलती है. और अगर हम उनको प्लॉट करते हैं तो हमको इस तरीके से रिजल्ट मिलता है, हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है. सो इस तरीके से हमने परफॉर्म किया शेयरिंग इन X एक्सिस एंड शेयरिंग इन Y एक्सिस और इस तरह से हमको हमारा न्यू ऑब्जेक्ट मिला है. So let us summarize. Today we have studied what is shearing transformation and how to perform shearing in X and Y direction. If you have any queries, then feel free to contact me or reach out on the following email ID. Keep learning and enjoy learning. Thank you. Thank you so much.